Hey guys, welcome back to my channel. I'm Priyanka and I'm back again with another video and I'm back. Actually अभी मैं ना सो की उठी हूँ बिकॉज सुबह मैं बाहर गई थी. आज मेरी छुट्टी थी. सुबह मैं बाहर गई थी और फ़ोन सीधा कर लेती हूँ. सुबह मैं बाहर गई थी एंड इट वाज अ रेनी डे. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं बारिश में भीग भी गई. ऑल्दो आई डोंट वांटेड टू बट स्टिल मैं भीग गई. एंड now after coming back I slept. No, I edited the video, uploaded the video, so my new video is on my channel, you can watch it. Uske baad I ate my lunch and then I slept for like 4 or 5 hours. I woke up now, so I'm thinking what to do now. I'm thinking to cook something or I have something to eat, so I'm confused, like shall I cook or I eat that what I have, because I'm getting bored and I don't know what to do now. I slept, okay? When you sleep, you don't feel like sleeping again. And kal hai meri shift. Let's see, I'm not sure what to do. Let's see. Also, I'm trying to be regular on my channel, but because of some reason, not for some reason, because of my shift, I am not able to post video twice, but I will do it later. At the moment, I can just post once in a week, and I think it's okay, to be very honest, to restart something. It's okay to post at once in a week. I just need support from you guys because when you leave something and when you decide to start it again, you need a courage. So although I'm motivated for that, like, okay, I'm motivated that I'll get views, this and that, but to be very honest, I'm not looking at my views again and again, because earlier I used to do that a lot. Now I'm like, okay, I'm gonna post, let's see how many views I get, and it's okay. What matters to me right now is to post something. So I'm posting. तो चलो मैं एक और चीज़ बताती हूँ. As I told that I'm working as a barista and doing a part-time job as well. So at my barista job, I see a lot of customers and some people are like, oh my god, for no reason they are so rude to you. So rude. I mean, भाई क्या चला जाएगा अगर तुम अच्छे से बात कर लोगे. सुबह सुबह मेकिंग अ कॉफ़ी, एक कस्टमर आती है मेरे पास एंड शी इज़ लाइक, oh, I need a latte. Excuse me, you can greet me at least. You can say hi, good morning. If I'm saying good morning, you can also reply me. But no, she was like, give me a latte. And I said, okay, good morning. I can give you a latte. There's no problem in that. Again, she was like, I asked her in a takeaway, or you want it for here? She's like, I want it for here, and I want it for here. I want to drink here. She started behaving like this. And I just stopped. I looked at her and I was like, hello, can you be a little polite, because I'm being very nice to you. I can't tolerate this. And she's like, listen, are you going to give it to me or shall I go to another place? And I was just looking at her and I told her that, okay, I'm not going to make coffee for you. If you want to be served, be nice, be polite, and behave yourself, or else there's a door, you can leave. And she stood there and she said, can I please have my coffee? I mean, भाई तेरा क्या चला जाएगा अगर तू तमीज़ से बात कर लेगी. मतलब ऐसे कस्टमर एक्सपीरियंसेस है ना मेरे पास, आई कांट इवन टेल यू. ये बंदी मेरे साथ इतनी रूड थी. एक बंदी मेरे पास ऐसी आई, मतलब सुबह सुबह आप ऐसे एनकाउंटर करते हो ना लोगों को. एक सुबह सुबह मेरे पास आई एंड आई ऑलवेज से दैट ओके आई टेक द ऑर्डर्स एंड देन आई चार्ज देम ऑन द टिल. So I would always say that whenever you're ready, you can pay here. I told this to one lady and she was like, who are you to tell me? I know what to do. भाई मैं तो बोलती हूँ, मतलब मुझे रटा हुआ है, मैं इसलिए बोलती हूँ. एंड एवरीबडी सेज दैट. So कहती, who are you to tell me? I've been coming here from last 6 years. You're no one to tell me. And मतलब क्या ही प्रॉब्लम है यार तुम लोगों को. तुम भाई तमीज़ से बात कर लोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा. माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना,
मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है बिकॉज आई थिंक अबाउट इट अगेन एंड इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग लाइक हेलो वी आर स्टैंडिंग हियर सर्विंग यू जस्ट हैव टू बी नाइस दैट्स इट। बड़े ऐसे उल्टे सीधे कस्टमर्स आते हैं यार बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मैंने इंडिया में H&M में काम किया है बट नेवर एवर आई एनकाउंटर्ड पीपल लाइक this, but here I am, and this is very bad. Like, you can be nice to people, there's nothing wrong in that. You're starting your morning, you're greeting people, you can greet people and say good morning, can I please। ये सब चीज़ें ना मैंने यहाँ आके सीखी है। इंडिया में मुझे भी मतलब यहाँ आके मुझे पता चला है कि अगर आपको तमीज़ से बात करनी है ना, यू हैव टू यूज़ प्लीज़ इन योर सेंटेंस। कैन आई प्लीज़ हैव इट, कैन आई प्लीज़ गो देयर, कैन आई डू दिस, कैन आई। सो अब मुझे ना ऐसा लगता है व्हेनेवर आई स्पीक विद समवन फ्रॉम इंडिया एंड obviously there's a certain tone and everything, so I feel like oh क्या ये बदतमीज़ी से बात कर रहा है, but it's not like that because इंडिया में तो अपन ऐसे ही बात करते हैं ना। मैं अपन बोलने लगी हूँ क्योंकि रिसेंटली आई मेड वन फ्रेंड एंड शी इज़ फ्रॉम गुजरात एंड शी लाइक ये तेरे को बोला था ना तू क्या कर रही है, एंड अपन को चलना था ना, डू यू रिमेंबर, शी टॉक्स लाइक दिस। सो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाता है जब भी मैं थोड़ा बहुत रहने लगती हूँ ना लोगों के साथ, तो थोड़ी थोड़ी आदत, जैसे आई हैव वन फ्रेंड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड इज़ लाइक मसला ये है कि इसके दरमियान समथिंग समथिंग। सो या क्या बात कर रही थी मैं, हाँ मैं कह रही थी कि मतलब यहाँ पे ना अ, अब यहाँ रहने के बाद आई फील लाइक ओ यार ये बदतमीज़ी से बात कर रहा है। फिर नहीं नहीं आए रिकॉल माई सेल्फ कि नहीं यार हम ऐसे ही बात करते थे, हम लोगों को नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे है कि प्लीज़ लगाओ अगर आपको कुछ बोलना है तो। अगर आपको आप लिटरली अगर आप कहीं से जा रहे हो कोई खड़ा है तो यू हैव टू से ओ सॉरी 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 सॉरी, यू जस्ट हैव टू सॉरी 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 ऑल द टाइम। एंड जब आपका पूरा रूटीन ऐसे चल रहा हो ना, कैन आई प्लीज़ हैव दिस सॉरी एंड इफ़ यू डोंट माइंड, उस पे एकदम से कोई ऐसे आता है ओ कैन आई प्लीज, शी डिड नॉट इवन सेड प्लीज, शी सेड कैन आई हैव लाटे, शी डिड नॉट इवन ग्रीटेड मी। सो आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। आई मीन कितनी बदतमीज़ औरत थी, कितनी बदतमीज़ औरत थी। मैं लिटरली मेरे मैनेजर के सामने ऐसे खड़ी हो गई कि मैं तो सर्व नहीं करूँगी इसको, आप देख लो आपको क्या करना है। और मैंने उसको मुंह पे भी बोल दिया था देयर इज़ अ डोर, यू कैन गो आउट, आई एम नॉट गोइंग टू सर्व यू। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, मूड ख़राब कर देते हैं। सो आज मेरा ना मन करा है कि मैं ऐसे ही बस व्लॉग बनाऊँ, ऐसे ही बातें करती रहूँ, सो इसीलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ अपना कि क्या कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने कस्टमर की बात बताई। एक तो कस्टमर भाई साहब ऐसी आती है, वो लिटरली आई मीन शी इज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब। सो उसने तो उसका ऑर्डर नहीं था, वो किसी और कस्टमर का ऑर्डर था, उसे लगा कि उसका ऑर्डर है, उसने लिटरली कस्टमर को मारना चालू कर दिया। एंड वी ऑल वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड, ये क्या हो रहा है। एंड हम लोग बस चुप थे। एंड देन जल्दी से उसको बताया कि नहीं 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 तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है ये। बहुत ही मतलब एक तो एक एक मैं बताती हूँ कि एक कौन है, एक लेडी है एंड उसको एक स्पेसिफिक टेबल पसंद है। तो उसकी टाइमिंग है, वो अपने टाइम पे आती है एंड उसे वो टेबल पे ही बैठना होता है। अगर वो किसी और को देखती है ना, वो लिटरली उन्हें बोलती है एक्सक्यूज़ मी दिस इज़ माई टेबल, कैन यू गेट अप फ्रॉम हियर। एंड हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उसको कि क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है। सम पीपल आर लाइक दिस। क्या बात है ना कि आप काम कर रहे होते हो, आप काम करते हो, आप घर आते हो, आपको आप अपने घर से निकलोगे ना बाहर, तब आपको रियल वैल्यू पता चलेगी पेरेंट्स की। क्योंकि सुबह आप काम पे जा रहे हो, ठीक है, विदाउट इवन हैविंग अ ब्रेकफास्ट और एनीथिंग, काम पे जाओ। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि यार सुबह उठो, पहले फिर खाना बनाओ फिर जाओ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, आई वो का लाइक मैं उठती हूँ और फिर मैं सीधा चली जाती हूँ काम पे। एंड देन मैं वहाँ जाके कॉफ़ी वॉफ़ी क्रोसॉन ये सब चीज़ें खा लेती हूँ। क्योंकि इट्स अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पहले सुबह बनाओ खाओ फिर जाओ। और तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाना ना बना लेती हूँ जब मैं काम से घर आती हूँ। दैट्स व्हेन आई मेक फूड, दैट्स व्हेन आई कुक।
तो खाना बनाती हूँ और फिर ऐसे चला जाता है मेरा पूरा दिन। मैं अपने घर वालों से भी बहुत रेयर होता है कि मैं बात करूँ या उनसे मेरी बात हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं सुबह काम पे जाती हूँ या सुबह मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी होता है, तो वो लोग काम पे होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता उस टाइम पे। और जब मैं अपने काम से फ्री होती हूँ तब तक वो सो चुके होते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस 4 आवर्स का, 4.5 आवर्स का, तो वो तब तक सो जाते हैं। तो इट्स लाइक कि अब क्या, तो घर वालों से ही बात हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। तो और किसी से तो आप क्या ही बात करोगे। और जब आपका इतना हेक्टिक डे जाता है ना, आपको मन भी नहीं करता कि बस आप एक घर वालों से बात कर लो, दैट्स व्हेन यू फील गुड। आपको और किसी से बात करने का मन ही नहीं करता यहाँ पे। और रही बात कुछ लोग बोलते हैं कि आप बाहर जाके भूल जाते हो ये वो, भाई अपने लिए टाइम निकाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। भूल क्या जाते हैं, लिटरली सुबह से शाम काम कर रहे हैं, उसके बाद घर आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, भाई कपड़े वपड़े धोने होते हैं, खुद सब कुछ करना होता है, लिटरली सब कुछ खुद करना होता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम उस शेड्यूल में टाइम निकालें। हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, हम उसमें खुश हैं। आप ये मत बोलो कि भूल गए हैं, ये हो गए हैं, बड़े लोग। ठीक है, हम बड़े लोग हैं, हम पूरा दिन काम कर रहे हैं अपना, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, अगर उसके लिए हम बड़े लोग हैं तो हम हैं, हम बहुत बड़े लोग हैं। कुछ लोग ना समझते नहीं है ये चीज़, मतलब जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते ना वो चीज़। मैं भी जब इंडिया में थी ना, तो मैं बोलती थी वो तुम लोगों के पास तो टाइम नहीं। मेरे एक दो फ्रेंड्स थे यहाँ पे, मैं बोलती थी तुम लोगों के पास तो टाइम नहीं है। जब मैं यहाँ आई हूँ ना, आई एक्चुअली फील लाइक मुझे अब सच में पता है कि नहीं होता टाइम यार। तुम्हारे घर के लिए टाइम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। कभी कभी तो ऐसा टाइम होता है कि आपका 2-3 दिन हो जाते हैं घर वालों से बात नहीं होती है, और दैट्स व्हेन यू फील सो बैड। मतलब मैं तो बहुत, मुझे बुरा लगता है कि घर वालों से बात नहीं हुई यार, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। शिफ्ट्स भी मैं देखती हूँ, आज मेरी शिफ्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो मैं घर पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से भी नहीं बोल सकते ना। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो ना, आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। आपको वो जो शिफ्ट दे रहे हैं आपको वो करनी पड़ती है। आप आगे से कुछ बोल भी नहीं सकते हो कि नहीं मुझे ये शिफ्ट ने मत दो या मेरे अकॉर्डिंग शिफ्ट दो। अगर आप ऐसे बोल दोगे ना तो आपको शिफ्ट ही नहीं मिलेगी। मतलब मैंने ना, मैं जब नई नई आई थी, मेरी नई नई जॉब लगी थी, मैंने बहुत फेस किया है अपनी जॉब पे, बट मैंने वो जॉब छोड़ी नहीं, यही वाली जो मैं अभी कर रही हूँ। मैं मतलब आप जवाब नहीं दे सकते हो, आप उस पोजीशन पे होते हो कि आप जवाब नहीं दे सकते अपने मैनेजर या अपने सुपरवाइज़र को। अगर आपने जवाब दे दिया, मतलब नाउ तो आई लाइक अब सब ठीक है, बट पहले एक बारी क्या हुआ था कि मेरी एक सुपरवाइज़र थी, मेरी उससे बहस, एंड आई एम अ टीम मेंबर, आई एम अ बरिस्ता नाउ, और वो क्या बोलते हैं, वो सुपरवाइज़र थी। तो एक बार ये ना मुझे, मेरी उससे बहस हो गई थी किसी चीज़ में। तो उस बंदी ने क्या किया, उस बंदी ने मेरे से बदला निकालने के लिए मेरे आवर्स कट करने लग गई। और मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे मैं क्या करूं। लिटरली मुझे 20 घंटे अलाउड थे काम करने के लिए, बट वो मुझे 9 घंटे या 10 घंटे का ही काम दे रही थी, जस्ट बिकॉज मैंने उसे जवाब दे दिया था। भाई तू गलत कर रही है, ऑब्वियसली मैं तेरे को जवाब तो दूंगी ना। मैंने वही किया और उसने मेरे आवाज़ काटने लग गई। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने देखी एक और जॉब। तो एट द सेम टाइम मैं 2 जॉब्स कर रही थी, बिकॉज भाई मेरे खर्चे हैं, मुझे रेंट पे करना है। यहाँ पे रेंट इतना महंगा होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, 400, 500, 600 सिंगल रूम यू गेट, लाइक इस प्राइस में आपको मिलता है। तो फिर मैं दूसरी जॉब करने लगे, एंड दूसरी जॉब वॉज ऑल्सो टफ। वो मुझे 10:30-11 बजे तक काम पे लगा के रखते थे, एंड ये जॉब भी कर रही हूँ, वो जॉब भी कर रही हूँ। एंड देन क्या हुआ, वो लड़की चली गई, उसको अपनी कुछ अच्छी जॉब मिल गई, वो वहाँ से छोड़ के चली गई। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज सो रिलैक्सड, बिकॉज मुझे फिर मेरी जो मैनेजर थी वो मुझे आवर्स देने लग गई, एंड मैं ठीक हो गई बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मैं 2 जॉब्स कर रही थी, फिर मुझे कॉलेज जाना था, फिर मुझे घर आके सारे काम करना था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आई मीन दैट वाज द टाइम आई फेल्ट सो बैड कि चल क्या रहा है मेरे साथ। मुझे घर रहना चाहिए था, मैं क्यों आ गई यहाँ पे, क्या ही चाहिए था मुझे, मैं घर रहती।
बट नहीं, फिर टाइमली सब ठीक हुआ, फिर वो मुझे आवर्स देने लगे, तो वो मुझे पूरे 20 आवर्स देती थी। मैं एक ही जगह काम करती थी, अपने कॉलेज जाती थी एंड घर आती थी, बाकी सारी चीज़ें करती थी, बहुत ठीक था। ऑल्सो मैंने व्लॉगिंग अपने कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट नहीं करी, मेरे कॉलेज का टाइम, अब मैंने कॉलेज की बात करी है तो ये तो हो गया काम की चीज़ें। कॉलेज का टाइम मेरा बहुत ही अच्छा गया है। मैंने दिल्ली में भी रेगुलर कॉलेज नहीं किया, सो आई डिड SOL। तो मतलब कॉलेज का टाइम मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। इवन इफ मैं अभी भी बात करती हूँ ना, हैव स्माइल ऑन माई फेस, क्योंकि वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था यूके में। आई यूज़ टू इन्जॉय क्लासेस लेना, मेरे फ्रेंड्स थे, तो सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी कॉलेज लाइफ। ऑल्सो भी मेरी कॉन्वोकेशन आने वाली है, उसके लिए मैं देख रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। आई एम वेरी डाइसी अबाउट इट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट जब मैं किसी और की स्टोरी सुनती हूँ ना, तो अपना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं प्रियंका, तो बहुत प्रिविलेज है, तेरा वो स्ट्रगल नहीं है। क्योंकि जब मैं आई थी ना, मुझे आते से ही 15-20 दिन में जॉब मिल गई थी। लोगों को 6-6 महीने जॉब नहीं मिलती, एंड वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उस बात के लिए टच वुड, मुझे जॉब मिल गई, मेरा कॉलेज चल रहा है एंड एवरीथिंग वाज फाइन। मैं मतलब लोगों की आज भी सुनती हूँ, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग जॉब्स के लिए। तो बहुत ही मतलब भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है, लिटरली हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में मेरा इतना साथ दिया है ना कि मैं यहाँ तक भी आ पाई हूँ। मेरे पेरेंट्स, भगवान, इन सब की वजह से आई एम हियर वेयर आई एम। बस अब मुझे एक स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढनी है यहाँ रहने के लिए, बिकॉज़ वीज़ा इश्यूज़ बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट को। तो मुझे जॉब चाहिए, स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए अगर मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अभी तो मेरे पास 2 साल हैं, बट अगर मुझे 2 साल से और ज़्यादा रहना है, आई नीड टू फाइंड अ स्पॉन्सर्ड जॉब, ताकि मैं यहाँ पे और रह सकूँ। नहीं तो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा एंड कुछ ना कुछ तो सीख के ही आऊँगी यार। खाना बनाना आ गया, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। आई यूज़ टू मेक मैगी, पराठा, चाय, दैट्स इट। यहाँ के मैं खाना भी बनाने लग गई हूँ, काम भी सारे खुद करने लग गई हूँ। पहले मम्मी के भरोसे होता था, मम्मी कर देंगी, मम्मी कर देंगी, बट अब सब खुद करना पड़ता है। आई मीन मदर्स लाइक बहुत करती हैं यार, आप लोगों को पता नहीं लगता होगा। जब हम उनके साथ रह रहे होते हैं ना, हमें नहीं वैल्यू होती उस चीज़ की, और जब हम बाहर आ जाते हैं ना, हमें पता लगता है हाँ हमारे माँ बाप कितना करते हैं। एंड ये जो मैंने कोट पढ़ा था कि माँ बाप ही रहम खाते हैं, दुनिया नहीं खाती, बिकॉज मैंने यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, मतलब मीन से मीन इंसान, मतलब सोचेगा भी नहीं वो कि वो बंदा क्या कर रहा है और उसका आप पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको कितना बुरा लग रहा होगा। और ये जो गोरे होते हैं ना, इमोशनलेस होते हैं। मैं अभी तक जितनों से मिली हूँ ना, सारे इमोशनलेस हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो आपको कुछ भी बोल देंगे विदाउट इवन थिंकिंग कि आपको बुरा लग रहा है या नहीं, आप कैसा फील करोगे। वो तुम्हें आज ही बोल देंगे जॉब छोड़ के चले जाओ। वो नहीं सोचेंगे कि तुम्हें आगे कल क्या मिलेगी, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, तुम कैसे अपना गुजारा करोगे। नो, मैं अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं मिली हूँ किसी बहुत ही अच्छे यहाँ के इंसान से। नो, आई कांट ट्रस्ट, 0% ट्रस्ट। सो ऐसे ही चल रही है अभी मेरी लाइफ ना। आवर्स, सेविंग्स, आई हैव टू सेव अ लॉट। आवर्स चाहिए मुझे, आवर्स के चक्कर में 6-6 दिन, 7-7 दिन काम। एंड आई एम टच वुड, आई एम ब्लेस्ड that I'm getting hours. People don't get it, but I'm lucky I'm getting it. So yeah, यही सब हो रहा है अभी। ऐसी ही चल रही है लाइफ यूके में। लोगों को लगता है बहुत लग्जरियस चीज़ें चल रही है, बहुत हैपनिंग है। हाँ, हैपनिंग है व्हेन यू हैव डे ऑफ्स, बहुत लाइफ हैपनिंग होती है, बट काम के टाइम पे यू हैव टू मैनेज थोड़ा बहुत। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। कर सकते हो आप यार, मैनेज हो सकती है। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइम आता है, मतलब लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। थोड़े दिन आपको बुरे लगेंगे, थोड़े दिन आपको अच्छा लगेगा, बट इट्स लाइफ एंड यू विल गो थ्रू इट वंस। जो भी चल रहा है, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, कल अच्छा है तो परसों बुरा आएगा, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी लाइफ ऐसी चल रही है यूके में एंड या आई एम एन्जॉइंग इट।
मेहनत करना आ गया, मेहनत कैसे करते हैं, असली मतलब ऑफ मेहनत अब मुझे पता चल गया है, असली मतलब ऑफ स्ट्रगल अब मुझे पता चल गया है। लोगों से भी मिल ली मैं, एंड जगहें भी। और मैं घूमी नहीं हूँ ज़्यादा लंदन से, जगह बोल रही हूँ मैं, लंदन के बाहर मैं अभी घूमी नहीं हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा फुल टाइम स्टार्ट हुआ है। अर्लियर आई यूज़ टू डू 20 आवर्स, तो उसमें बहुत कम होता था, रेंट वेंट ही निकल जाए, एक्सपेंसेस ही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब फुल टाइम स्टार्ट हुआ है, देखूंगी, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगी, जाऊंगी दूसरी कंट्रीज़। पहली तो मेरी लिस्ट में पेरिस है, मैं पेरिस ज़रूर जाऊंगी, पेरिस जाऊंगी। मैं अपनी सिस्टर को बुलाना चाहती थी अपने कॉन्वोकेशन में, बट अभी थोड़ा सा बन नहीं रहा है प्लान, बट नेक्स्ट ईयर होपफुली फॉर श्योर आई विल ask my sister to come, my parents to come and hear and explore कि कैसा है। बाकी तो सब ठीक ही है यार, ऐसी ही है, यहाँ पे हो जाता है सब कुछ। आज मेरा मन किया कि मैं अब हमेशा सोचती हूँ कि बाहर जाके ब्लॉग बनाती हूँ या कुछ करती हूँ, बट हर बार ही पॉसिबल नहीं है ये चीज़ ना। Why not to talk? If I can talk, I'm into customer service role. I can talk a lot. So I thought, let me just open my camera and talk whatever I want. So this is what I did in this vlog, and I feel like it's good. I should share also that what is happening here, how is life going here, and बस बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बस मैनेज करना आना चाहिए, बाकी तो दिन अच्छे बुरे चलते ही रहते हैं। Okay, so this is it for this vlog. I just wanted to share live. That's it. And I did. I'll see you guys again in my next vlog. But मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लेती हूँ. Let's talk and share. बस यही करना था मुझे. So yeah, I'll see you guys again in my another vlog. Which one is going to be happening? I'll go out when I get next off. And yeah, this is it for this vlog. Hope you get a motivation that you can do whatever you want. It's not impossible. Do not give up, and keep on hustling, keep on struggling. You'll get what you want, or what you deserve one day for sure. So yeah, see you guys in my next vlog. Bye bye.